السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ وریشا ذوالفقار، میں ہوں سید رضی اور میں ہوں سہریش زہیب۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے الیکشن کون کرائے گا۔ لیک ہو گئی، اپنے بھی بول پڑے، چسکیاں، مستیاں، سیلفیاں، شکست کھائی، ٹاپ پوزیشن گنوائیں، اور ابھی تو میں جواں ہوں۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے صاف اور شفاف انتخابات کمیشن پنجاب کی نگرانی کون کرے گا۔ الیکشن کمیشن آج نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ کرے گا۔ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ اجلاس میں چاروں ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن شریک ہوں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تجویز کردہ ناموں پر غور کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے احمد نواز سکھیرا، نوید اکرم چیمہ، جبکہ حزب اختلاف نے محسن نقوی اور احد چیمہ کے نام تجویز کیے۔ احمد نواز سکھیرا، نوید چیمہ، محسن نقوی یا احد چیمہ، کون ہوگا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب؟ چیف الیکشن کمشنر آج اہم اعلان کریں گے۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد اور صوبائی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد سے جاری سیاسی بحران تھمے گا یا مزید بڑھے گا؟ صوبے کی چابی کس کو ملے گی؟ فیصلہ ہوگا آج شام۔ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ اجلاس میں چاروں ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن شرکت کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تجویز کردہ ناموں پر غور کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے بنائی گئی 2 طرفہ پارلیمانی کمیٹی مقررہ وقت میں اتفاق رائے پر پہنچنے میں ناکام رہی۔ حکومت کی جانب سے احمد نواز سکھیرا، نوید اکرم چیمہ، جبکہ حزب اختلاف نے محسن نقوی اور احد چیمہ کے نام تجویز کیے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد امیدوار کا فیصلہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس صرف آج ہی کا دن باقی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن کمیشن کو دیا گیا 2 روز کا وقت آج ختم ہو جائے گا۔ اور الیکشن کمیشن نے دونوں صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ عقیل احمد موجود ہیں۔ عقیل، اجلاس بھی طلب کیا گیا اس سلسلے میں؟ دیکھیں، بالکل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کہ خیبر پختونخوا اور پشچم پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرائے جانے ہیں، جبکہ جو قومی اسمبلی کی 64 نشستوں پر ضمنی انتخابات کرائے جانے ہیں، تو اس کی تیاریاں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے شروع کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کل ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے جس میں تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ان انتخابات پر کتنے اخراجات آئیں گے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ابتدائی تخمینہ ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیوں پر انتخابات کی صورت میں 15 ارب روپے کے اخراجات آئیں گے، جبکہ قومی اسمبلی کی جو 64 نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے ہیں اس پر 5 ارب روپے کے جو اخراجات آئیں گے۔ تو اس حوالے سے اب الیکشن کمیشن کی جانب سے ابتدائی تخمینہ لگا لیا گیا ہے، اور کل کے اجلاس میں یہ بھی جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ پنجاب اسمبلی اور جو عام انتخابات اور جو 2 اسمبلیوں کے انتخابات الگ الگ کرانے کی صورت میں جو اخراجات ہیں ان میں 20 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے حکومت کو بھی آگاہ کیا جائے گا، اور گزشتہ روز حکومت کی جانب سے 18 ارب روپے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے جو ہے وہ دیے گئے تھے۔ تو اب اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ذرائع الیکشن کمیشن کا یہ بتانا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان پر جو ضمنی انتخابات ہیں وہ مارچ میں کرائے جائیں گے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے جو الیکشنز ہیں وہ اپریل میں کرائے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اب الیکشن کمیشن کی جانب سے اس بارے میں آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ کپتان نے اپوزیشن کے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ناموں کو مسترد کر دیا۔ بول نیوز کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں کہا نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے زرداری کے فرنٹ مین کا نام دیا گیا۔ ہم کبھی بھی ایسا وزیر اعلیٰ قبول نہیں کریں گے۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان نے کہا حکومت کو ڈر لگ گیا ہے کہ ہم اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں تو استعفے قبول کر لیے۔ اب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کیا نام دیے ہیں؟ ایک فرنٹ مین ہے زرداری کا، ایک فرنٹ مین ہے شہباز شریف کا۔ کیئرٹیکر کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا نیوٹرل امپائر کھڑا ہو۔ انہوں نے تو وہ آدمی کھڑا کر دیا ہے نون لیگ سے بھی ہمیں زیادہ نقصان پہنچانے والا، بالکل اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس اس کا ٹریک ریکارڈ ہے پورا۔ انہوں نے ملک کے ساتھ چوروں کو اوپر بٹھایا، انہوں نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں سارے اپنے کرپشن کے کیسز قانون پاس کے، نیب کی امینڈمنٹ چینج کر کے معاف کروا۔ جنرل باجوہ نے 2 بریگیڈیئر بھیجے تھے، انہوں نے ثابت
किया नवाज शरीफ की पैनमा केस, जिसकी वजह से नवाज शरीफ आज तक माफ नहीं कर रहा जनरल बाजवा को। एक दफा ये कोई चीज ना चाहे, पाकिस्तान में वो नहीं होती, ना एहतसाब होता है, ना उस वक्त रूल ऑफ लॉ होता है। और ये जनरल बाजवा ने जुल्म किया, क्योंकि एक आदमी के पास इतनी ताकत है, आर्मी चीफ की इतनी ताकत है पाकिस्तान में, क्योंकि उनका सबसे मुनज़्ज़म इदारा है। 60 सालों में आधी दफा मार्शल लॉ रह गया और आधी दफा जो सिविल गवर्नमेंट्स भी आए हैं, इनका बड़ा इनकी पेनिट्रेशन है ना। इस वक्त पार्लियामेंट फंक्शनल है, वो तो मजाक हो गया ना पार्लियामेंट। जब हमने कहा उनको डर लगा कि हम पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने लोगों को निकाल दिया और राजा रियाज बन गया, जिसने नून का टिकट लेना वापस। पार्लियामेंट में डिसफंक्शनल है, इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी को फेथ नहीं है, FIA को उन्होंने तबाह कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, नैब को खत्म कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ा इन्होंने, नजम सेठी जिसको कोई क्रिकेट नहीं सर उसको बैठा के। हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजवा के जाने के बाद न्यूट्रल होगी एस्टेब्लिशमेंट, वो न्यूट्रल नहीं है अभी। अपनी घड़ी मैंने बेची है, उसके ऊपर इन्होंने सारा तोशाखाना ये गवर्नमेंट ने मिलके, हैंडलर्स ने मिलके, यानी एक इतना बड़ी चीज बनाई। अब वो फटा पहाड़ निकला चूहा, यानी उसमें से है ही कुछ नहीं। लेकिन जिधर है, जिधर उन्होंने इलीगली गाड़ियां निकाली हैं और तोशाखाना का रिकॉर्ड जब मांगा अदालत ने, उन्होंने कहा जी ये सीक्रेट। मुल्क की मईशत तबाह, गरीब आवाम का महंगाई से बुरा हाल। नून लीगी घर का भेदी मुसलसल लंका ढाने में मसरूफ है। मिफ्ता इस्माइल अपनी ही हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर फिर चढ़ दौड़े। कहा अवाम का मजीद पेट काटने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान का कर्जा बढ़कर 51,000 अरब तक पहुंच गया। पाकिस्तान को इस साल 21 अरब डॉलर्स की अदायगी करना है। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। हुकूमत ने 4 माह में फैसले नहीं किए, जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। समझता हूँ कि ये पिछले 4 महीने में जो हुकूमत ने फ़ैसले नहीं लिए उससे मईशत का नुकसान हुआ है। तो अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जो है वो कुछ फ़ैसले करे, हम मिनहासुल कौम फ़ैसले करें कि हमारी क्या मईशत की सिमत होनी चाहिए। पाकिस्तान को इस साल के 21 अरब डॉलर वापस करने हैं बैरून मुल्क के इदारों के और बैरून ममालिक के कर्जाजात के। गुंजाइश नहीं है कि हम यहाँ पर और हमारे लोगों के पेट काटें और बाहर किस्तें भरें, तो हमको कोई ना कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान वही मजबूत होगा जिसमें पाकिस्तानी मजबूत होंगे। तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को हुकूक दिए जाए। पाकिस्तान में 20 साल से हम कोई निचकारी भी नहीं कर सकें और दूसरी तरफ हुकूमती इदारे जो है वो अरबों का नुकसान कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जो है वो कुछ फ़ैसले करे, हम मिनहासुल कौम फैसले करें कि हमारी क्या मईशत की सिमत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज की वतन वापसी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने बताया कि मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी और 28 जनवरी को शाम 5 बजे लाहौर पहुंच जाएंगी। मरियम नवाज 6 अक्टूबर को बैरून मुल्क रवाना हुई थी। और अब कुछ बात मौसम की। सफेद मोतियों की बरसात, मुल्क के बालाई इलाकों में हर तरफ सफेदी छा गई। मलका कोसार मरी, आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और स्वात के सयाहती मकामात के हुस्न ने सयाहों को शहर में जकड़ लिया है। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल बाद बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बर्फ से ढक गए घर और चट्टान। मलका कोहिसार मरी में मोतियों की मानिंद गिरती बर्फ को देखकर सयाहों की चांदी हो गई। सयाह रात देर तक सड़कों पर रहे, सुबह दोबारा बर्फबारी हुई तो होटलों से निकल आए। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और सवात के सयाहती मकामात के हुस्न ने सयाहों को शहर में जकड़ लिया। स्कर्दू, अस्तोक, बाबूसर, मालम जब्बा, कालाम में हर तरफ सफेद गालों की बहार है। अयूबिया, नथिया गली, अबडाबाद, हुंजा में सयाहत की रौनकें पूरी आबोताब से बहाल हैं। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल बाद बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गई। कराची में आज कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी की नई लहर की पेशगोई कर दी। पारा 2 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बर्फबारी से राबता, सड़कें बंद और लोग घरों में महसूर हो गए। और जनाब मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि वीकेंड के मौके पर बर्फबारी के शौकीन सयाह भी बड़ी तादाद में मरी पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर बर्फबारी के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद मॉल रोड पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है। आरिफ बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज़ से मलका कुसार मरी में वक्फे से और हल्की बर्फबारी का सिलसिला जो वो जारी है, जिसके बायस दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से गिर चुका है और सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है। सेव की बात की जाए तो आज वीकेंड के मौका पर सेव की खासी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है, जो यहाँ के बर्फबारी के नज़ारों और यहाँ के जो मौसम से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ एक सैफ फैमिली भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और यहाँ मौसम को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग चनियोट से आए हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स पे गए हैं, कश्मीर को आए हैं, पिंडी नकला गली गए हैं। जी माशाल्लाह बहुत इंजॉय और ये बहुत मज़ा हो रहा है। कल से बर्फ़बारी स्टार्ट हुई हुई है, आप सब भी आए, बहुत अच्छी यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। जी जैसा कि मैंने बताया जी कि कल से बर्फबारी का सिलसिला जो ठीक है आयल, शुक्रिया आपका। मरी में सयाह एंजॉय करें तो दूसरी जानिब सवात के सयाहती मकामात कालाम, बहरीन और मालम जब्बा टॉप समेत वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से कई राब्ता सड़कें बंद होने से मामूलात जिंदगी मुतासर हो जाते हैं। सूरत हाल जानेंगे सैयद अनवर शाह से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात की तफरीही मुकाम मलम जब्बा में। यहाँ पर स्नोफॉल जारी है। स्नोफॉल देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख तो करती है, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों को स्नोफॉल से काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। इस वक्त हमारे साथ एक मकामी शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना? अस्सलाम वालेकुम, मैं तो यहाँ का लोकल बंदा हूँ। यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तो ये साइडों की जितनी भी एरियाज़ है उनके लोग घरों में फंस जाते हैं और फिर आग जलाने का भी मसला होता है, क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने यहाँ पे वो पाबंदी लगाई हुई है कि लकड़ी नहीं काटनी। तो हमें लकड़ी का सबसे बड़ा मसला ये होता है और नीचे से जो हमें जो राशन, आटा, घी ये सब चीज़ होती है उसका भी बड़ा मसला हमें आ रहा है। तो हमारी हुकूमत से भी मुतालिबा है कि हमारे लिए इसका कुछ बंदोबस्त किया जाए और ये जो सैर तफरीक के लिए लोग जो आ रहे हैं उनके लिए भी इससे आसानी पैदा होगी। जी शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे बर्फबारी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जो अगले 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानेंगे। हुंजा में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम बताइए कैसा मौसम है? इस वक्त हम मौजूद हैं हुंजा के इलाके मुर्तदाबाद में जहां गुज़िश्ता रोज़ से जो है वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं यहाँ पे तेज़ बर्फबारी जो है इस वक्त भी जारी है और यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता शब से ही जारी है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ तक वक्फे से बर्फबारी का यह सिलसिला जो है बालाई इलाकों में जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों के पहाड़ों पे जो है वहाँ पे भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मैदानी इलाकों में जो है मौसम काफ़ी हद तक सर्द हुआ है। इसके साथ साथ बालाई इलाकों में भी दर्जे हरारत जो है